गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच वी हैव सीन सम terms which are related to the optical activity, because if the reactant is optically active, then there are many terms which are used to define them. If the any optical active substance undergoing either SN1 or SN2 reaction, then there is a major change. We can say that if the reactant is undergoing SN1 reaction, then the product will be formed with the retention of configuration. In last lecture I have defined the retention of configuration. This is the phenomena in which the substitution of nucleophile with the attacking group and leaving group takes place at the single site. Means there is no change in configuration of the molecule. Here configuration means substitution must take place at the same site. Okay. In SN1 reaction, the intermediate is carbocation. So we can say that the carbocation have the planar structure, so attacking species will be attack at the same manner, so the retention of configuration will be maintained, or other words we can say that the configuration will be never change. Let an example. Here we took the example in which SN1 reaction takes place. In first step, the X molecule, the leaving group will be live here as the form of X negative, then it form carbocation, and in other step the OH will be attacked and it form the hydroxyl groups. Here we can say that the removal of X negative and attack of OH group takes place at the same side. Other words we can say that if the leaving group leave from the front side, then attack must be from the same side. Here there is no relation between the optical active substance. We can't say that D convert into L or L convert into D, either plus convert into minus or minus plus. No, here there is no relation between the optical active substance. Here retention in configuration means just constant the side. Substitution must be takes place from the same side. Okay, now we will discuss the inversion in configuration. Inversion in configuration is the base characteristic phenomena of SN2 reaction. First of all, you have to learn that this is the characteristic phenomena of SN2 reaction. We notice that in SN2 reaction, the reactant molecule will be invert with the configuration, because the leaving group will be removed from the front side, while the nucleophile will be attacked from the back side. Let an example. C H H H, then हम X. If X remove and OH attack here, then X will be removed as the form of X negative, then OH will be attacked from the, like as it convert into pentavalent vacancy, that is X negative, and here OH negative. Then it convert into pentavalent species, that is called transition state. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट. देन फ्रंट साइड से क्या हो रहा है, रिमूव, है ना, लिविंग ग्रुप का लीव होना फ्रंट साइड से, एंड द अटैकिंग विल बी फ्रॉम द बैक साइड. सो द interchange of the substitution, other word we can say that the substitution invert from front to back side, this phenomena is known as inversion in configuration. Okay, inversion in configuration is the best characteristic feature of SN2 reaction. If we use any optical active substance, then there may be change from D to L or L to D. This is the unfortunately chance. We can't say that the conversion of D to L is inversion in configuration. No, there is no mean of D to L, L to D. No, here inversion in configuration is mean just change of side from leaving group and attacking group. Okay. Now we discuss some other reactions of alkyl halides. In nucleophilic substitution reactions, we have seen that there are two types reaction. First one is
SN1 and SN2 reaction, and now we will discuss the reduction reactions. First of all, we know that the reduction means, in general trend we can say that the addition of hydrogen atom or removal of oxygen atom is the reduction. Similar here, the reduction means also addition of hydrogen. First of all, I want to say that alkyl halides are less reactive substance because these are more stable, so they never do these reactions in normal conditions, so we require some mild condition for the reduction. First, in reduction, when alkyl halides are reduced with newly born oxygen, nascent oxygen is used because this is most reactive form of hydrogen in presence of ZnCu, zinc copper metal, in ethanolic solution and ethanolic solution with the sodium metal. अदर ऑप्शन, फर्स्टली क्या यूज़ कर सकते हैं, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन या नैंसेंट ऑक्सीजन. सेकेंड, ZnCu मेटल इन एल्कोहलिक मीडियम. अदर यूज़ कर सकते हैं सोडियम विद एल्कोहलिक सोल्यूशन, एंड अदर वी कैन यूज़ द सोडियम mercuric amalgam. They convert the alkyl halides into the alkanes. C2H, let an example, C2H5Br. When react with the ZnCu metal in alcoholic solution, then the replacement of halogen atom will be takes place with the hydrogen atom, and they convert into the respective alkanes. Here there is no change in the series of the carbon atoms. The product will be containing same carbon number of atoms which are used in the reactant molecules, like as here we use the reactant containing 2 carbon atoms, then the product will be also contains only 2 carbons. Basic change, X atom replaced with the hydrogen atom. In starting we have seen that the halogen derivatives are also derived from the alkanes, so these are obtained by the replacement of X atom with the hydrogen atoms. Other reaction with metals. देखो रिएक्शन विद मेटल से मोस्ट ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है. रिएक्शन विद सोडियम मेटल की कंडीशन में क्या होता है, देखो स्पेसिफाई रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन का नाम देखो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ WURTZ, ठीक है. वुड्स रिएक्शन डेप्थ में देखेंगे इस रिएक्शन को. व्हेन RX कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कि जब RX कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा रहे हैं और वो भी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इट फॉर्म एल्केन हायर नंबर ऑफ कार्बन देन द रिएक्टेंट हैलाइड्स. कि जब भी अपन एल्किल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन ये वाटर के अंदर एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए मीडियम क्या काम मिलेंगे, हम ड्राई ईथर काम मिलेंगे. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर हमको जो एल्केन मिलती है उसके अंदर ज़्यादा कार्बन होती है, किसकी बजाय, रिएक्टेंट की बजाय. सुनो क्या होगा इसके अंदर. देखो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के लेते हैं और दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो इनसे क्या होती है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NaBr. 2 मॉलिक्यूल NaBr की निकल जाएंगे और दोनों एल्काइल जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस के अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. दोनों एल्काइल मॉलिक्यूल ऐड होने के कारण क्या होता है, जितने कार्बन का हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया उससे डबल कार्बन की हमको क्या मिलती है, एल्केन चेन मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल का डाइमराइजेशन हो जाता है. रिएक्शन सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की कंडीशन में अगर आ रही है तो उस कंडीशन में उस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना. इस रिएक्शन का क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन. अब देखो अगर इस रिएक्शन के अंदर एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक ले लो, है ना, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक ले लें, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिग, FITIG, फिटिग रिएक्शन. रिपीट कर रही हूँ, ओपन चेन है देन वुड्स रिएक्शन. एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक हो जाएगी, देन हम उसको क्या बोलेंगे, एक एलिफेटिक और, ठीक है. अब देखो जब आप इससे रिएक्शन करवाते हो ना, तो इसके अंदर जैसे 2 कार्बन है तो बनने वाला प्रोडक्ट 4 कार्बन का होगा, 2 और 2 4 कार्बन का. अगर आपने 1 कार्बन और 2 कार्बन का लिया तो देखो इसमें वैसे रियल में अगर ये अपन ये देखते हैं ना तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 3 टाइप का बनेगा. जैसे इसी के साथ रिएक्शन हो जाए तो CH3, इसी के साथ रिएक्शन हो जाए तो C2H5, और आपस में रिएक्शन हो जाए तो CH3, C2H5, क्योंकि कंटेनर के अंदर ये भी होगा तो हो सकता है इसी से इसी का मॉलिक्यूल मैच कर जाए, हो सकता है इससे इसका मॉलिक्यूल मैच कर जाए, हो सकता है यही दोनों मॉलिक्यूल आपस में मैच कर जाए. तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसके अंदर 3 टाइप की एल्केन्स मिलती हैं आपको.
मोस्टली ये रिएक्शन उसके अंदर काम में लेते हैं जिसमें दोनों एल्काइल हैलाइड्स क्या आते हैं, सेम साइज के आते हैं। सेम साइज़ के जो एल्काइल हैलाइड्स आते हैं तब इसके अंदर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। अदरवाइज अपन को बहुत सारे एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर मिलता है, ठीक है ना। तो जनरली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेम एल्काइल हैलाइड्स, है ना, या फिर आप बोल सकते हो इवन नंबर ऑफ हैलाइड्स के लिए ही काम में लेते हैं अपन। फिर देखो वुड्स रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, दोनों के दोनों अगर ओपन चेन है, एलिफेटिक चेन है, if the both alkyl halides are aliphatic and treated with sodium in presence of dry ether, this reaction is known as Woods reaction, ठीक है ना, Woods reaction. If the reaction takes place between one aromatic halide and one aliphatic halide with sodium metal in presence of dry ether, एक aliphatic एक aromatic, then उस reaction को बोलोगे फिटिग, FITIG, फिटिग रिएक्शन आगे आएगी इसलिए मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना, फिटिग रिएक्शन। और अगर दोनों के दोनों ही एरोमेटिक ले लोगे, सॉरी दोनों के दोनों एरोमेटिक लोगे तो फिटिग रिएक्शन, और एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक लोगे तो एरोमेटिक के लिए तो नाम आता है फिटिग और एलिफेटिक के लिए नाम आता है वुड्स, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। सारा रिपीट करते हैं, दोनों एलिफेटिक मॉलिक्यूल वुड्स रिएक्शन, दोनों एरोमेटिक फिटिग रिएक्शन, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक देन वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाम पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन क्या है तो आपको क्या लेना है, वुड्स फिटिग रिएक्शन है तो आपको क्या लेना है, और ओनली फिटिग रिएक्शन है तो आपको क्या लेना है। अगली देखो रिएक्शन विद जिंक। देखो व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद जिंक दे फॉर्म डाई एल्काइल जिंक नोन एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या है, तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है R2Z, डाई एल्किल जिंक। डाई एल्काइल जिंक को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। C2H5Br एल्काइल हैलाइड मोलिक्यूल है, रिएक्शन विद जिंक कन्वर्ट हो गया C2H5Zn C2H5 प्लस ZnBr2। डाई एल्काइल जो जिंक होता है ये डाईथाइल जिंक हो गया, तो डाई एल्काइल जिंक जो होता है R2Zn उस मोलिक्यूल को हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। याद रखनी है आपको बात कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया। उसके बाद में देखो अगला आता है मैग्नीशियम। बहुत बार जिक्र आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है, इतना इम्पॉर्टेंट कि जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम उस रिएक्शन को भी क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं इससे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं। मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, बट ये भी क्या होती है, एक्सप्लोसिव नेचर की होती है, वाटर के अंदर क्या होती है, ब्लास्टिंग रिएक्शन देती है। इसलिए एज ए मीडियम हम ड्राई ईथर लेते हैं, है ना। ड्राई ईथर लेने का एक ही रीज़न होता है कि जो भी रिएक्टेंट मोलिक्यूल है अगर वो एक्सप्लोसिव नेचर का है तो उसको बचाने के लिए, है ना, एक्सप्लोसिव नेचर का है तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वाटर को अवॉइड करके उसकी जगह पे मीडिया को इनर्ट लेते हैं ताकि रिएक्शन में ब्लास्टिंग नहीं हो। तो व्हेन C2H5Br रिएक्शन विद मैग्नीशियम देन क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो बनता है उसको अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। C2H5MgBr, ठीक है ना, C2H5MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेस फॉर्मूला आपको RMgX लिखना है। अब आप लोगों के देखो रिएजेंट कौन कौन से आ गए हैं। एक तो आप लोगों के आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको याद रखना है RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एक आया है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, R2Zn। एक कॉपर के साथ भी होता है लेकिन कॉपर वाला आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, कॉपर के साथ में आता है उसको क्या बोला है, सॉरी जिंक के साथ में उसको अपन ने बोला फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और उसके बाद में आप लोगों की सोडियम के साथ रिएक्शन है, तो सोडियम वाली रिएक्शन के अंदर मैंने स्पेसिफाई करके कंडीशन बोली आपको कि एक तो आप लोगों की क्या आएगी, वुड्स रिएक्शन, एक फिटिग रिएक्शन, एक वुड्स फिटिग। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ में, दोनों के दोनों एलिफेटिक है, खुली चेन है, ओपन चेन है, वुड्स रिएक्शन है। एक की जगह पे C6H5 लिख दिया यानी बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। दूसरे की जगह पे भी बेंजीन रिंग आ गई है, दोनों बेंजीन रिंग है, इसका मतलब एरोमेटिक हो गए, दोनों एरोमेटिक हैं तो उसका नाम क्या हो गया,
जुड़नी वैसी है, C6H5 C6H5 तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिटिक रिएक्शन, FITIG, ठीक है। एक ऐसा का ऐसा, एक बेंजीन रिंग, तो इधर से देखोगे एलिफेटिक तो वुड्स रिएक्शन दिख रही है, बेंजीन रिंग देखोगे तो फिटिक रिएक्शन दिख रही है, मिक्स नाम लिखा जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा वाइल्डली यूज़ होती है रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर अगर आपकी दोनों एल्किल हैलाइड्स मॉलिक्यूल सेम है तो प्योरली प्रोडक्ट बनता है, जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए वाइल्डली यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। तो आज हमने क्या देखी है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हमने लिखा है व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस विद नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, और किसकी प्रेजेंस में, ZnCU की प्रेजेंस में हो सकती है एथेनोलिक सोल्यूशन, सोडियम इन एथेनोलिक सोल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, सोडियम अमलगम हो सकता है ना, इनकी प्रेजेंस में करवाते हो तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देन आपने रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें किस किस के साथ में देखी है, पहली सोडियम के साथ में वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये दोनों आगे आएंगे। अभी हमने सिर्फ वुड्स रिएक्शन देखी है ना, इसलिए मैंने बता दिया है कि कल को अगर आपको फिटिक रिएक्शन आती है तो फिर ऐसे आता है सोडियम मेटल के साथ तो रिएक्शन करवाने पर उसको वुड्स रिएक्शन बोला था, आज आप फिटिक क्यों बोल रहे हैं। आगे हमने क्या देखी है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास R2Zn, जिसका स्पेशली नाम क्या है, फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो क्वेश्चन रिएक्शन इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितना नाम है, पूछा जाता है फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है। आगे अपन देखते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन बोलते हैं RMGX। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आप ये लिख सकते हो RX कंपाउंड, ठीक है, RX कंपाउंड, इस कंपाउंड को आपने रिएक्शन करवाई है जैसे KOH, ठीक है, सिर्फ KOH लिखा है, एल्कोहलिक है, ठीक है, एल्कोहलिक। अगर आपने एल्कोहलिक लिखा है तब तो आपके पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, और यही रिएक्शन KOH और क्या लिख दोगे, एक्वस, देन आपके पास में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन तो कौन सी है, SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, KOH एक्वस कंडीशन के अंदर, ठीक है। KOH इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, देन वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। एक्वस रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने सीधा ये देखा है RX रिएक्शन विद KOH, वाटर वेल नोन रिएजेंट होता है, जब नहीं दिया हुआ होता तो आप यही समझते हो कि रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, OH ग्रुप का अटैक हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, SN1 SN2 अलग मैटर है वो। अगर KOH के साथ में एल्कोहलिक दिया है तो आपको क्या करनी है, रिएक्शन एलिमिनेशन करनी है, और उसके साथ में क्या होगा, एल्कीन। ये वाली तो अपन काफ़ी वाइल्डली देख चुके हैं कि एल्कोहलिक मॉलिक्यूल में SN1 है SN2 है, हो कोई सा भी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। वो रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग अलग होने की वजह से क्या आती है, मैकेनिज्म अलग होती है, तो हमारे पास ये होता है कि दो तरह की फिनोमिना हैं अपने पास। बाकी रिएक्शन में प्रोडक्ट फाइनल क्या है, एल्कोहल। ये तो होती है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू इसमें से क्या निकलता है, HX मॉलिक्यूल या फिर KX, या सोडियम लिया तो NaX निकल जाएगा, पोटेशियम लिया तो KX, ये मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब तक का जो बताया है उसको आप पढ़ते जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। होप सो आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ये लास्ट चैप्टर है बेटा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें एक बुक कंप्लीट हो जाएगी अपनी।